Dear all, today I am going to discuss on a topic which is very close to my heart, and the topic is how to become an effective personality. See, this personality word comes from a word called persona. Persona means your appearance. What sort of appearance? Two types of appearance. Your external appearance as well as your internal appearance. For external appearance, you need two things. First one is your well-groomed personality, your dressing sense. And the second one is a body language. Both the things required. And sometimes people think that this external appearance or external persona doesn't make any sense. No, it makes a lot of sense. Why? Because for creating the first impression, you never get a second chance. Yes, first impression is not always going to be the last impression, believe me. For last impression, you need to be internally smart as well, right? But you might have observed that there are some people who comes along with the positive vibes, so with the negative vibes. You might have observed. In your office, a person enter with a negative energy. A person enter with a positive energy. What is this positive vibes or energy? That is a body language, right? So both these things require to be done. The external appearance as well as the internal appearance. Now, in this video, I am going to discuss about how you are going to be an effective personality from within your own self, internally. So, शुरू करते हैं. The first thing which is required to make yourself an effective personality is have empathy. Put yourself in other position, other shoe. Try to understand their position, what they are feeling, and behave accordingly. Believe me, that is going to make a lot of sense. When I usually interact with the young people in the colleges and university in seminars, I put myself in their position, try to speak their language, crack jokes which they usually like. That makes me, effective at that particular moment. When you are going to interact with someone who is 5 years old kid, behave accordingly, right? You become effective. Same time, if you are interacting with someone who is of older age, behave accordingly. Believe me, you are going to get a lot of attention at that point of time. So to understand other point of view and behaving accordingly, that makes a lot of sense. That makes you an effective personality. Sir, one more point is here. पता है इस दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स उनके जड़ हैं दो. One is expectation, another one is perception. Expectation बिल्कुल नहीं रखना है, कोशिश करनी है. Because the moment you expect something from someone and you don't get it, you feel bad about yourself, you feel bad about that person, you feel bad about that situation. So, expectation zero करने की कोशिश करो. हालांकि मुश्किल है, लेकिन कोशिश करो. The second one is perception. Most of the time we perceive something about others. And here is also a problem. मैं ये एग्जाम्पल हमेशा कोट करता हूं. आप ऐसे देखिए, आपको इधर से व्हाइट दिख रहा होगा और मुझे इधर से ब्लैक दिख रहा है, विटिश दिख रहा है, ठीक है. हम सारे दिन लड़ाई कर सकते हैं कि ये व्हाइट है और मैं बोलूंगा, आप बोलेंगे व्हाइट है और मैं बोलूंगा ब्लैक है. पूरे दिन लड़ाई कर सकते हैं. लेकिन अगर हमने जरा सा ऐसे चेंज करके देख लिया होता, आपको ब्लैक दिख जाता और मुझे व्हाइट दिख जाता. सर, ये गजब की लर्निंग है. 90% टाइम ना तो आप गलत होते हो, ना सामने वाला गलत होता है. उसका नजरिया कुछ अलग होता है उसी सिचुएशन को देखने का. आपका नजरिया अलग होता है उस सिचुएशन को देखने का. दैट इज द ओनली डिफरेंस. रेस्ट एवरीथिंग इज intact. Believe me. So, you need to bring that empathy. Means putting yourself in other position and trying to understand the situation. And believe me, that makes you an effective personality. Now, moving to the second point. What is going to bring that effectiveness in your persona, your personality?
सर, दैट इज एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, हम्बलनेस, थैंकफुलनेस. बी हम्बल, बी थैंकफुल. Believe me, I never met a person who really like arrogant people. No. People love humble people. One who is having a smile on his or her own face. Yes. So bring that attitude of gratitude. Who is big in this world? B-I-G, big. B for big, I for in, G for gratitude. जिसमें gratitude बड़ा है, वही बड़ा इंसान है. अच्छा, पता है, आपने देखा होगा लोगों में ईगो आते हुए. किन में आता है ये ईगो? सर, जिनको नया नया ताजा ताजा कुछ मिल गया हो, पैसा मिल गया हो, या कुछ पोस्ट मिल गई हो, पावर मिल गई हो, अचानक से नॉन डिजर्विंग हो, फिर भी मिल गई, अब अहंकार आ जाता है. तो मेरा ऐसा मानना है कि ईगो सिर्फ उन्हीं लोगों में होता है जिनमें कुछ नहीं होता है. क्योंकि अगर कुछ आ गया, अच्छा सा ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो आप झुके हुए. ठीक है, पेड़ में जब फल लगते हैं तो वो झुक जाता है. तो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड आसान नहीं है, कोशिश कीजिए लाने का. सर, थैंकफुलनेस और हम्बलनेस के लिए मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दूंगा. मैंने देखा है लोगों को नॉर्मली अच्छे से बिहेव नहीं करते हुए अपने से छोटे तबके के लोगों के साथ. और मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति की पहचान जो है वो इस चीज से होती है कि वो अपने से छोटे तबके के लोगों के साथ कैसे बिहेव करता है. दैट इज हिज ट्रू कैरेक्टर, राइट. तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि आप मुझे गुड मॉर्निंग बोलो या ना बोलो, लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, आपका गेट खोलता है, उसको गुड मॉर्निंग जरूर बोला करो. स्माइल देके गुड मॉर्निंग बोल दो. बिलीव मी, वो एक्सपेक्ट नहीं करता आपसे गुड मॉर्निंग. ठीक है, आप जब उसको गुड मॉर्निंग बोल रहे होगे, आप उसका दिन बना रहे होगे. ठीक है. सो ब्रिंग दैट हम्बलनेस, थैंकफुलनेस. ग्रेटिट्यूड मीन्स थैंकफुलनेस. हम सब लोग जिंदगी में क्रिप करते रहते हैं. मुझे आईआईटी नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मेरे पास ऑडी नहीं है, उसकी 2 गर्लफ्रेंड मेरी तो है ही नहीं. आप रोते रहो, जिंदगी भर रोते रहो, ब्लेम करते रहो. कभी मम्मी पापा को, ठीक है, कभी दोस्तों को, कभी कॉलेज को, और कभी बहुत ज्यादा, कभी क्या, भगवान को. सर, आप क्रिप कर सकते हो, चॉइस इज योर्स. ठीक है. कॉलेज मेरा अच्छा नहीं है, टीचर्स अच्छे नहीं है. देखो, अंधकार को मिटाने के लिए ना, आप कोर्स करके तो अंधकार नहीं मिटा सकते हो. यू नीड टू लाइट अ लैम्प. अच्छा, इस चीज को समझने के लिए कि आज के बाद आप क्रिप नहीं करेंगे, कोसेंगे नहीं, मैं एक शानदार सा स्टोरी सुना देता हूं. सर, आपके पास जूते नहीं हैं, यू डोंट हैव शूज. आपके पास जूते नहीं हैं, इसके लिए आप कब तक रोगे? जब तक कि आप ऐसे इंसान से ना मिलो जिसके पास पांव ही नहीं है. एग्जैक्टली. So be thankful to God that everything is intact. Thankful to your parents that they provide quality life to you. Right? So that thankfulness, the attitude of gratitude is very much essential to make yourself an effective personality. Third one is be honest, be loyal. Towards whom? Towards your parents first. Why parents? Because they have given everything to you, life to you. मैं देखता हूं कि कॉलेज के बच्चे पीजी में, हॉस्टल में रह रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कुछ भी बदमाशियां कर रहे हैं. ठीक है, और उनको लग रहा है कि मम्मी पापा को नहीं पता लग रहा है. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मम्मी पापा को सब पता होता है. वो इसी बात के मम्मी पापा है, क्योंकि जो बदमाशी आप कर रहे हो वो करके छोड़ चुके हैं. ठीक है, और आप उन्हीं के प्रोडक्ट हो. अभी आप इतनी बदमाशी कर रहे हो, तो वो अपने जमाने में क्या किए होंगे. ठीक है. इग्नोरेंस इज ब्लिस. इग्नोरेंस है. ठीक है. सोचे छोड़ो यार, बड़ा हो गया बच्चा. ठीक है. तो मम्मी पापा को सब बात नहीं बता देनी है, लेकिन बी ऑनेस्ट, बी लॉयल टुवर्ड्स योर पेरेंट्स.
उनको तो पता होनी चाहिए, पापा को नहीं तो मम्मी को तो जरूर होनी चाहिए बातें पता आपके बारे में, ठीक है? बी ऑनेस्ट, बी लॉयल टुवर्ड्स योर पार्टनर। रिलेशनशिप में है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, शादी हो गई है, हस्बैंड वाइफ, बी ऑनेस्ट। पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ फिजिक्स में कितना लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा लगता है भाई साहब। Until unless you are not going to loyal towards your own partner, you cannot expect your partner to be loyal towards you. अब सोच के देखना मैं क्या बोल रहा हूं। So be honest, be loyal towards your partner. Be honest, be loyal towards your work. जो काम कर रहे हो उसके प्रति ईमानदार हो। I have seen people, they are working for someone, they are not working for themselves. आप किसी को इंप्रेस करने के लिए काम नहीं करते इस दुनिया में, खुद को करने के लिए करते हो, अपनी इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हो। सो बी ऑनेस्ट, बी लॉयल टुवर्ड्स वर्क। अब स्टूडेंट हो, ईमानदारी से अपना काम करो, वो जरूरी है, और मात्र वही चीज जरूरी है। देश बदलने के लिए उतना ही जरूरी है, हर आदमी अपना काम ईमानदारी से करे, बस। बॉर्डर पे जाके लड़ाई नहीं करना है आपको, ठीक है? उसके लिए लोग हैं, बराबर। सर लास्ट, बी ऑनेस्ट, बी लॉयल टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ। खुद के प्रति तो ईमानदार बनो यार। आप आधे टाइम तो खुद से चीटिंग कर रहे होते हो, खुद को नहीं जानना चाह रहे होते हो, ठीक है? एक सर्टेन एज के बाद लोग अल्कोहलिक वगैरह हो जाते हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो अपनी सच्चाई से भागना चाह रहे होते हैं। मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा खैर, बट बी ऑनेस्ट, बी लॉयल टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ, बहुत जरूरी है। दैट मेक्स यू रियली एन इफेक्टिव पर्सनैलिटी। फोर्थ वन एंड द लास्ट वन, सर, नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज विथ योर कैरेक्टर। पता है लाइफ में कई मौके मिलेंगे टू कॉम्प्रोमाइज विथ योर कैरेक्टर, नेवर डू दैट। लॉस ऑफ एनीथिंग कैन बी कंपनसेटेड, बट लॉस ऑफ कैरेक्टर नेवर गोना कंपनसेटेड। मैं एक छोटी सी पब्लिक लाइफ जीता हूं और मुझे बहुत लोग बहुत प्यार करते हैं, इज्जत भी देते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोग जो प्यार देते हैं और इज्जत देते हैं, वो क्यों देते हैं? क्योंकि मैं अच्छा बोलता हूं या मैं अच्छा पढ़ाता हूं? नहीं, कहीं ना कहीं इनको पता है कि ये अच्छा इंसान है, और ये अच्छा इंसान होना सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर से डिफाइन होता है। तो वो कैरेक्टर लेके आइएगा, जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है? सर, मैंने देखा है लोगों को अर्थ से फर्श तक जाते हुए बिकॉज ऑफ दिस लूज कैरेक्टर थिंग। इन माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, वाइस प्रेसिडेंट रैंक का आदमी, ठीक है, सेक्रेटरी के साथ पकड़ा गया। भाई साहब, खत्म हो गई जिंदगी, बिल्कुल। इज्जत गई, नौकरी गई, बीवी को पता लग गया, बच्चा छीन लिया, डिवोर्स हो गया, एकदम अर्श से फर्श तक आते देखा है। सो नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज विथ योर कैरेक्टर। इन योर लाइफ यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ चांस। रोकिएगा अपने आप को, ठीक है? सो द 4 things required to become effective personality. First one, empathy, putting yourself in other position. Second, attitude of gratitude. Third, honesty and loyalty. And fourth, most important one, your character. I'm 100% sure that you got a lot of good stuff out of this particular video. Try to inculcate 1 or 2 things in your personality, right? It's not easy, but please try to do that thing and make yourself an effective personality. Thank you. Thanks a lot for your patience listening. See you in the next video.